Hello friends, in this lecture we will start some chemical reactions, that is chemical properties of alcohol and phenols. Chemical reactions of alcohol and phenols. On different reaction with different chemicals, some distinguished tests for alcohol and phenols. So let's check one by one. The test characteristic test for phenol. First हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल कि व्हेन a phenol react with neutral ferric chloride solution, when a phenol react with neutral ferric chloride solution, neutral solution of ferric chloride, it gives formation of a deep purple or violet colored solution due to formation with complex of ferric phenoxide complex. And this is the distinguished test for the phenol. Phenol, when react with neutral ferric chloride solution, it gives formation of complex of ferric phenoxide complex in with neutral FeCl3. So we need to take this reaction with 3 molecules of phenol. Due to slightly acidic nature of phenol, it formed the complex with ferric chloride reaction. Three molecules of phenol react with neutral FeCl3. It gives formation of complex of ferric phenoxide. Ferric phenoxide. This gives a deep color, deep purple or violet color complex plus 3HCl. This is the distinguished test for phenol. We can easily distinguish phenol by using neutral FeCl3. Only phenol gives the deep color complex due to its acidic nature. It immediately reacts with a neutral FeCl3 and form the ferric phenoxide complex. That complex gives a color to the particular that particular color is identification test for the phenol. So let's check out next reaction, that is distinguished test for alcohol. The next test is distinguished test for the alcohol. The reaction or this test is also called as Lucas test. So we can easily distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. All the three types of alcohol can be distinguished by using this Lucas test. So reaction simple hai. What is a Lucas reagent? Lucas test, it's the word stands for Lucas reagent. What is a Lucas reagent? It is a mixture of HCl plus ZnCl2. It is a mixture of HCl plus ZnCl2, and this reagent involve conversion of alcohol into alkyl halide. This reaction, normally when alcohol react with this Lucas reagent ZnCl2 and HCl, okay, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि when alcohol HCl in presence of ZnCl2, so this alcohol undergoes dehydration reaction and you will get corresponding alkyl halide plus water. So alcohol, Lucas reagent convert alcohol into corresponding alkyl halide. Okay. So in this Lucas reagent, the alcohol is soluble, but when this alcohol convert into alkyl halide, that alkyl halide remain insoluble and it produce a precipitate into the solution, and this is the distinguished test. Suppose your solution become turbid due to formation of product, so this indicates that the reaction or alcohol get converted into corresponding alcohol. So how will you distinguish primary, secondary and tertiary alcohol by using this test? तो टेस्ट सिंपल है कि tertiary alcohol react fastly. Suppose same reaction if we carried out tertiary butyl alcohol, when react with HCl in presence of Lucas reagent, immediately get dehydrated
and you will get corresponding tertiary butyl chloride. This tertiary butyl chloride immediately produce a precipitate produce कर देता है, and this immediately precipitate formation होगा just by simple shaking. It gives instant precipitation. So suppose reaction में instant precipitation immediately precipitate आ रहा है, तो you can distinguish, it can immediately observe this solution will be tertiary alcohol solution. Suppose the reaction, if you carried out the same reaction with secondary alcohol, it produce a turbidity in the solution very slowly. For example, उसका example हम लोग देखते हैं. CH3 secondary alcohol, that is isopropyl alcohol, when react with HCl, it gives, the alcohol undergoes dehydration reaction, produce isopropyl chloride, CH3Cl, 1 2 3 isopropyl chloride and water molecule by loss of water molecule. So in this reaction, secondary alcohol also produce the turbidity or turbidity into the solution due to formation of secondary alkyl halide, but the formation of secondary alkyl halide is very slow process. So we can easily take judgment लेके हम लोग immediately identify कर सकते हैं कि tertiary alcohol immediately precipitate formation करता है as compared with secondary. And primary alcohol की बात करें तो primary alcohol produce turbidity only on heating. Primary alcohol produce turbidity only on heating. So we can easily identify the three alcohols, for example tertiary alcohol, secondary alcohol and primary alcohol. Tertiary alcohol immediately gives the turbidity, secondary alcohol produce slowly the turbidity, and primary alcohol gives turbidity only on heating. जब हम लोग इसको हीट करेंगे तभी ये प्रेसिपिटेट जनरेट करेगा और सॉल्यूशन टर्बिड होता है. ये स्लोली इमीडिएटली प्रेसिपिटेट जनरेट नहीं करता, ये स्लोली प्रेसिपिटेट जनरेट करेगा. और ये इमीडिएटली एडिशन ऑफ जैसे लूकस रिएजेंट ऐड किया अल्कोहल में, इंस्टेंटली इमीडिएटली वो प्रेसिपिटेट जनरेट करता है. सो बाय यूजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो हम लोग देखते हैं, एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. सो एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. हम लोग सब जानते हैं कि अल्कोहल्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स. व्हेन दे डिसॉल्व इनटू द वाटर they immediately do not release H+ ion immediately. Same way when we compare the phenol shows slightly acidic characters. So exactly reason क्या है? This is because of extent of liberation of hydrogen. Immediately hydrogen जो ionized होने की tendency होती है वो अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंट है. लिबरेशन ऑफ H+ आयन की टेंडेंसी अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंट होती है, वो हम लोग चेकआउट करते हैं. कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल व्हेन डिसॉल्व इनटू द वाटर, so it get ionized OH minus plus H3O plus. Same way when phenol dissolve into the water, it gives formation of phenoxide ion. So alcohol produce alkoxide ion and phenol produce phenoxide ion. So overall liberation of H+ ion is totally depend upon the stability of either alkoxide ion और phenoxide ion. जो आयन सॉल्यूशन में जाने के बाद, एक्वियस सॉल्यूशन में जाने के बाद परफेक्टली स्टेबलाइज होता है, उसमें डिसोसिएशन ज़्यादा फेवरेबल होता है एज कम्पेयर विद एसोसिएशन, क्योंकि रिजल्टिंग निगेटिव चार्ज दोनों स्ट्रक्चर पे जनरेट हो रहा है. यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है. तो बोथ द केसेस अल्कोहल और फिनॉल में सपोज ये नेगेटिव चार्ज कहीं दूसरे जगह पे डाइवर्ट होके डीलोकलाइज होके स्टेबलाइज हो जाए तो डिसोसिएशन ऑफ H+ आयन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि
डिसोसिएशन ईजी हो जाएगा, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। एसिड की टेंडेंसी वही है कि द कंपाउंड विच रिलीज H प्लस आयन मोर रेडिली, जो इमीडिएटली H प्लस आयन रिलीज करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये अल्कोक्साइड की बात करें तो अल्कोक्साइड में अल्किल ग्रुप में नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, बट द ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे तो आर ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो वो इस ऑक्सीजन को इंस्टेड ऑफ स्टेबलाइज करने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहिए था, तो भी ये निगेटिव चार्ज जो है परफेक्टली स्टेबलाइज होता था विद दिस अल्किल ग्रुप। बट यहाँ पे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को डोनेट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है, और जो H प्लस आयन उसने रिलीज़ किया है उसमें फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गए, फिर से वो अल्कोहल फॉर्म में आ जाता है। सपोज ये निगेटिव चार्ज कहीं पे स्टेबलाइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन एटम की कम हो जाती थी और डिसोसिएशन ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, इसलिए वो एसिडिक नेचर दिखाता था। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी ऑक्सीजन पे है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्किल ग्रुप उसको और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अनस्टेबल कर रहा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फिर से H प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट करके फिर से नॉर्मल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अल्कोहल जो है इट प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इनटू द वाटर, क्योंकि आयनाइज हो नहीं पाता, प्रॉपरली आयनाइज हो नहीं पाता, क्योंकि डिसोसिएशन और एसोसिएशन का रेट एग्जैक्टली सेम ही है। तो जैसे मॉलिक्यूल डिसोशिएट होता है इमीडिएटली एसोसिएट हो जाता है, हेंस ये एसिडिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, या फिर इट शोज अ न्यूट्रल पीएच व्हेन डिजॉल्व इनटू द वाटर। बट व्हेन वी कंपेयर फिनॉल, तो अल्कोहल का काम खत्म हुआ कि अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व करने के बाद न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल का कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम लोग फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल की, व्हेन इट डिजॉल्व इनटू द वाटर इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अभी रिजल्टिंग नेगेटिव चार्ज गेट डीलोकलाइज विद दिस बेंजीन रिंग। This negative charge resulting phenoxide जो charge है would get delocalized with benzene ring and which is perfectly stabilized by aromatic characters of benzene ring। तो नेगेटिव चार्ज परफेक्टली स्टेबलाइज हो रहा है कैसे, वो देखते हैं हम लोग। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये O माइनस 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव चार्ज H 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन नंबर 2 के और 3 के बीच में शिफ्ट होगी, तो ये फिर से कार्बन नंबर 4 की तरफ चला जाता है। डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हुआ, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड ही, नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 और 6, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 और 5 के बीच में शिफ्ट हो जाएगी, तो 6 और या तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 और 6, और फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फिर से फिनॉक्साइड स्टार्टिंग वाला मटेरियल जनरेट कर देगा, फिर से वो फिनॉक्साइड आयन में जनरेट होगा। So by observing this all resonance structure, this resulting negative charge on oxygen is get perfectly stabilized by resonance से perfectly stabilize हो रहा है। इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज है which is less available toward this oxygen atom, ऑक्सीजन की तरफ वो लेस अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम कर देते हैं ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, हेंस it create a favorable condition for release of H plus ion, and जितनी जल्दी H plus ion वो immediately रिलीज करेगा, H plus ion OH माइनस आयन फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो जाता है। हेंस द फिनॉल जो है वो एसोसिएशन ज़्यादा डिफिकल्ट करता है एज कम्पेयर विद डिसोसिएशन की कंडीशन उसको फेवरेबल करती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी, इसलिए एसोसिएशन डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन डिसोसिएशन को फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं। हेंस रिलीज ऑफ H प्लस आयन इज मोर रेडिली इमीडिएटली हो जाता है एज कम्पेयर विद अल्कोहल फिनॉल में।
तो फिनॉल एक कॉमन स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल. फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ the resulting negative charge on phenoxide ion gets stabilized due to resonance stabilized structure of phenoxide ion, and due to perfect stabilization of negative charge it create a favorable condition for dissociation of H plus ion. और जितने immediately H plus ion dissociate करेंगे उतने ज़्यादा एसिडिटी उस स्ट्रक्चर की इंक्रीज होती है. ओके तो ये थे एसिडिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. वहाँ पे एक ही स्टेटमेंट देखा हम लोगों ने कि अल्कोहल फिनॉल इज अ मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक एज कंपेयर विथ अल्कोहल. और व्हेन पीएच पेपर पर हम लोग पीएच चेक करेंगे फिनॉल का तो ये स्लाइटली एसिडिक पीएच आपको दिखाएगा. ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ. द नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन. सो व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? सिंपली इट इज अ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. सो व्हाट इज एस्टर, हाउ एस्टर इज फॉर्म वो हम लोग देखते थे. इट इज अ रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल and carboxylic acid. It is a reaction between alcohol and carboxylic acid or alcohol and phenol, carboxylic acid and phenol. This reaction in which carboxylic acid form corresponding ester, and this reaction is known as esterification reaction. Esterification of alcohol or phenol is carried out in presence of concentrated sulfuric acid because in this reaction the loss of water molecule takes place, and this loss of water molecule takes place that water molecule जो loss होता है वो sulfuric acid decompose कर लेता है, consume कर लेता है, because sulfuric acid is the strongest dehydrating reagent. So overall reaction हम लोग देखेंगे तो reaction should be carried out in presence of strongest sulfuric acid because of the loss of water molecule which avoid the forward reaction में जो water generate होता है वो reaction को backward direction में लेके जाता है, फिर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिकम्पोज करेगा. ये अवॉइड करने के लिए हम लोग रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सल्फ्रिक एसिड. सल्फ्रिक एसिड डिकम्पोज करता है, वाटर जो फॉर्म होगा रिएक्शन का उसको डिकम्पोज करता है और इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता है और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ज़्यादा होगा. रिएक्शन देखते हैं व्हाट इज एस्टरिफिकेशन. कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन सिंपल है. The lone pair of electron of alcohol will attack on electron deficient carbonyl carbon. Okay. And OH माइनस लॉस होता है. तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन को डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस. ये दोनों मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड हो उसको जाके ये OR डैश ग्रुप जाके अटैच होगा, OR डैश, और यहाँ से निकलने वाला H और यहाँ से निकलने वाला OH. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल. सो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. ओके सो ये जो वाटर फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्शन में ये इमीडिएटली एस्टर को डिकम्पोज करता है. फॉर एग्जांपल हम लोग H और OH की बात करें, ये वाटर फिर से ऐड होगा तो क्या होगा, इस रिएक्शन में से डिकम्पोज हो जाएगा. तो RC डबल बॉन्ड OH फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड ROH अल्कोहल जनरेट होगा. सो इक्विलिब्रियम फिर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होता है क्योंकि ये वाटर जो जनरेट होगा ये एस्टर को डिकम्पोज करता है फिर से एसिड और अल्कोहल में. हेंस the reaction is carried out in presence of strongest sulfuric acid, and that strongest sulfuric acid decompose this water form in this reaction. तो वाटर डिकम्पोज हो जाएगा तो डिकम्पोज करने के लिए कोई रीजन वहाँ पे बचता नहीं और आपको प्योर फॉर्म में एस्टर मिलेगा. बट रिएक्शन इज ऑलवेज रिवर्सिबल. ओके तो पहला रिएक्शन देखते हैं हम लोग जनरल रिएक्शन कि अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा एस्टर जनरेट होता है वो हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि मिथिल अल्कोहल. मिथाइल जनरल रिएक्शन को फॉलो करो, हमेशा जनरल रिएक्शन जो है उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगा, खाली आर्ट चेंजेस होता है. कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड RC डबल इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन. ये OH और यहाँ से H प्लस आयन और ये OH माइनस आयन कंप्लीटली बाहर निकलेगा. इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3
सी डबल बॉन्ड O, उसको ये मिथॉक्सी ग्रुप जाके अटैच हो जाए, OCH3 प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है रिएक्शन से। तो इन दिस रिएक्शन कि व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट, मिथाइल और ये एसीटेट ग्रुप है, मिथाइल एसीटेट, ओके। या फिर IUPAC सिस्टम में उसका नॉमेनक्लेचर के हम लोग तो मिथाइल इथेनॉइड, अल्काइल अल्केनॉइड बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनॉइड। लास्ट में जब भी OATE या फिर ATE आता है तो ईस्टर फॉर्मेशन करता है, ये इंडिकेशन है ईस्टर का। तो ये देखा पहला रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग ईस्टर। रिएक्शन हमेशा डबल हेडेड एरो के साथ, रिएक्शन ऑलवेज रिवर्सिबल फॉर्म में होती है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड इस वाटर को डिकम्पोज कर देगा तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ये ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन कंडीशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करती है और आपको ईस्टर ज़्यादा मिलेगा। इफ़ यू कैरिड आउट द सेम रिएक्शन विथ फिनॉल, फिनॉल हम लोग जनरली उसको AROH भी लिखते हैं फिनॉल, जब आपको बल्किल ग्रुप लिखना नहीं रहेगा कॉमन सेंटेंस में तो R की जगह पे खाली मिथाइल इथाइल की जगह पे यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगा। तो व्हेन फिनॉल रिएक्शन से रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड CH3OH in presence of concentrated sulfuric acid, again this lone pair of electron will attack on this electron diffusion, कार्बन कार्बन OH ग्रुप बाहर निकलेगा, ये OH और यहाँ से एक H का लॉस होता है, C डबल बॉन्ड या फिर उल्टा लिखा तो भी चलेगा, हाँ? तो ये हो जाएगा फिनाइल एसीटेट, ओके। तो डिफरेंट प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं यहाँ पे। तो फिनॉल के साथ भी आपको ईस्टर मिल रहा है और अल्कोहल के साथ भी आपको ईस्टर मिल रहा है, तो दो अलग अलग प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। लेकिन अल्कोहल एंड फिनॉल अगेन व्हेन रिएक्ट विथ एसिटिक अनहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन आल्सो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, जरूरी नहीं कि आपको अल्कोहल और फिनॉल को हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करना है। इफ़ यू कैरिड आउट सेम रिएक्शन विथ एसिड अनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कैरिड आउट करोगे तो यू विल गेट अगेन ईस्टर एंड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। वो रिएक्शन हम लोग चेकआउट करते हैं। पहले दो रिएक्शन देखे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, नेक्स्ट रिएक्शन जो देखते हैं विच विल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल विथ अनहाइड्रेट एसिड अनहाइड्रेट के साथ। रिएक्शन of alcohol and phenol with acid anhydride, this is a structure of acid anhydride का structure है। Also same way in this reaction we will get a formation of ester, okay? तो रिएक्शन देखते हैं, जनरल रिएक्शन पहले लिखते हैं कि when alcohol react with acid anhydride R, ऊपर लिख दो C डबल बॉन्ड O R डैश, तो अल्कोहल react with anhydride, अगेन दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर यहाँ पे अटैक करेगा या फिर दोनों कार्बन कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं बिकॉज दे अटैच टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑक्सीजन एटम, दे अटैच टू द इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की खींच लेते हैं और वो हो जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यहाँ पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा। और यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो इस कार्बन ग्रुप के साथ ये अल्कोक्साइड ग्रुप जाके अटैच होगा और यहाँ पे बचेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ से निकलने वाला है H प्लस। तो सेकंड बाय प्रोडक्ट जो जनरेट होगा दैट इज एसिटिक एसिड। तो पहले हम लोग लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O को एसिडिक कंडीशन में, अगेन रिएक्शन इज ऑल्सो रिवर्सिबल, RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O R डैश, और यहाँ से निकलने वाला है कंप्लीट एसिटिक RC डबल बॉन्ड O माइनस और ये H प्लस एसिटिक एसिड जनरेट करेगा, एसिटेट अनायन RC डबल बॉन्ड OH। So you will get corresponding ester and acid.
अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ एसिडिक एनहाइड्राइड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एंड करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. सेम वे ArOH फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे, सेम वे अटैक होगा. R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R डैश. दिस लोन पैराफ्लोट्रॉन इमीडिएटली अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से कम्प्लीटली ब्रेक होता है. एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन है तो यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O O E R. अगेन बाय प्रोडक्ट विल रिमेन सेम. दोनों केस में आपको बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे भी ईस्टर जनरेट होगा और यहाँ पे भी ईस्टर जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे अल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूशन है, तो अलग अलग टाइप के आपको ईस्टर्स मिल जाएंगे. तो एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं इसका पहले कि व्हेन मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिटिक अनहाइड्राइड OC डबल बॉन्ड OCH3 H प्लस. You will get CH3 C double bond O CH3 plus CH3 C double bond OH. ये अगेन मिथाइल एसीटेट और एसिटिक एसिड, ऐसे दो बाय प्रोडक्ट जनरेट होते हैं रिएक्शन में. व्हेन वी कैरिड आउट द रिएक्शन मिथेनॉल with acid anhydride gives formation of methyl acetate and acetic acid. सेम रिएक्शन, खाली आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच कर देना है. ओके, तो फिनाइल एसीटेट आपका जनरेट हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ मिथाइल एसीटेट इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एसीटेट. ओके, अगेन देयर इज अनदर रिएक्शन बाय विच वी कैन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. हम लोग फिर से रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल व्हेन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड carried out in presence of a pyridine as a base, because HCl जनरेट होता है रिएक्शन में. HCl रिएक्शन को डिकम्पोज करके फिर से इक्विलिब्रियम जो है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता है. वो अवॉइड करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इस रिएक्शन में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो जनरेट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग उसमें बेस यूज़ करते हैं pyridine. तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है, मतलब HCl और pyridine उसमें रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन हो जाता है न्यूट्रल. ओके, और आपका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर आपको एम्पल ऑफ और मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलता है. थर्ड रिएक्शन वो देखते हैं कि अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर बाय यूजिंग एसिड अनहाइड्राइड, सॉरी एसिड क्लोराइड, सॉरी बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड. अगेन रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. सो रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड. Again, when alcohol and phenol react with acetyl chloride, it gives formation of ester and HCl as a byproduct. वो रिएक्शन देखते हैं, जनरल रिएक्शन दोनों का कि when alcohol react with acid chloride, तो मैं जानबूझ के रिएक्शन को थोड़ा सा अपोजिट लिखता हूँ, एसिड क्लोराइड को RC डबल बॉन्ड हो, क्योंकि यहाँ से एक HCl निकालना ज़्यादा ईजी हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे pyridine के साथ रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं. pyridine तो क्या हो जाएगा, RO इस कार्बन ग्रुप को जाके अटैच होके आपको RC डबल बॉन्ड O R डैश और ये HCl बाहर निकलता है. दिस HCl अगेन अटैक ऑन दिस ईस्टर मॉलिक्यूल H. हाँ, यहाँ पे Cl और H की बात करते हैं, बॉन्ड ऐसे डिकम्पोज होके फिर से ROH अल्कोहल और RC डबल बॉन्ड Cl ईस्टर एसिड क्लोराइड जनरेट हो जाता है. तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं बेस के साथ. pyridine इज अ बेस. दिस बेस रिएक्ट विथ दिस एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और रिएक्शन को न्यूट्रलाइज है. HCl जो फॉर्मेशन होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि pyridine रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ pyridine हाइड्रोक्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ HCl फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइज, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. सेम वे फिनॉल व्हेन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, रिएक्शन से खाली R की जगह पे हम लोगों ने फिनॉल यूज़ कर लिया. यहाँ पे R pyridine, अगेन RC डबल बॉन्ड OER प्लस HCl. सो दोनों केस के हम लोग देखेंगे. तो एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. एक एग्जांपल में फिर से ले लेता हूँ. मिथिल अल्कोहल
व्हेन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, नॉर्मल रिएक्शन लिखा तो भी चलेगा, CH3 डबल बॉन्ड OCH, लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टेक करेगा, ये क्लोरीन बाहर, यहाँ से एक H बाहर, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine you will get CH3 डबल बॉन्ड OCH3 plus HCl, again you will get methyl acetate या फिर मिथाइल इथेनॉइड एज अ प्रोडक्ट। सेम वे फिनॉल के साथ रिएक्शन करोगे तो फिनाइल एसीटेट, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये थे डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर बाय यूजिंग अलग अलग रिएजेंट हम लोगों ने यूज़ किए। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ एसिटिक एनहाइड्रेट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड। सो अलग अलग रिएजेंट देखे, बट मेन प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता था वो हमेशा आपका ईस्टर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। इट इज़ अ ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बोर्ड में आ चुका रिएक्शन है एक बार, इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं एसिटिल डेरिवेटिव, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। ओके, इन दिस रिएक्शन व्हेन सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विथ एसिटिक अनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड, यहाँ पे भी दो अलग अलग रीजन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग मेटल फिक्स रहेगा, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। व्हाट इज अ सैलिसिलिक एसिड? इट इज अ ऑर्थो हाइड्रोक्सी या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ एसिटिक अनहाइड्राइड इन एसिडिक कंडीशन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन दैट इज ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड and acetic acid as a byproduct. So let's check out the reaction कि how acetic acid get converted into aspirin, and that aspirin, it is a well known generic drug, generic medicine है which is used for heart patient जो होते हैं उनके लिए हम लोग जनरली एस्पिरिन का टैबलेट प्रीफर करते हैं, ब्लड को थिन रखने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड वाला रिएक्शन देखते हैं। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH और ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड। व्हेन रिएक्ट विथ एसिटिक अनहाइड्राइड CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, दैट इज एसिटिक अनहाइड्राइड, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसका रीज़न मैंने बताया। The lone pair of electron of oxygen will attack on this electron deficient carbon carbon, ये बॉन्ड यहाँ से कम्प्लीटली ब्रेक होगा, यहाँ से निकलने वाला ये एसिटेट अनायन और ये H प्लस आयन दोनों कंबाइन होकर एसिटिक एसिड जनरेट कर लेगा, और इस फिनाइल के ऑक्सीजन ग्रुप जो है एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन ग्रुप को ये एसिटेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल रिएक्शन आपको मिलेगा, ये एज इट इज अनटच है, COOH O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, और CH3 C डबल बॉन्ड O और H एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इट इज अ एसिटिक एसिड और ये जनरेट हो गया आपका एस्पिरिन। इसका दूसरा नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये 1-2 पोजीशन में बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन जो रहेगा जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो एस्पिरिन इट इज़ अ ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये एसिटिल ग्रुप अटैच हो चुका है और इसमें सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल ग्रुप सैलिसिलिक एसिड में अटैच हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो व्हेन सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद एसिटिक अनहाइड्राइड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है, इसको अच्छे से, कभी कभी खाली एस्पिरिन का नाम पूछा जाता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली IUPAC नेम ऑफ एस्पिरिन, या फिर व्हाट इज एग्जैक्टली नेम ऑफ एस्पिरिन, दैट इज एसिटिल या फिर 2 एसिटिल या फिर ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये अलग अलग नाम है स्ट्रक्चर के। इसके पहले जो रिएक्शन देखे उसमें रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि सम केमिकल रिएक्शन
उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे द रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब ये आर ग्रुप जो है, फर्स्ट रिएक्शन देखे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी रिएक्शन जो देखते हैं दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर वाले जो रिएक्शन देखते हैं उसमें अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आगे वाले रिएक्शन देखेंगे उसमें आपका कंप्लीटली कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड ब्रेक होता है। सो रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हाइड विथ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हाइड। तो हमको पता है कि रिएक्टिविटी की जब बात आती है तो इमीडिएटली जो हाइड्रोजन हाइड ब्रेक होगा, रिएक्शन जनरल ऐसा है कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाइड, HX के साथ रिएक्ट होगा तो बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सो व्हेन अल्कोहल react with hydrogen halide it gives formation of alkyl halide by loss of water molecule। अभी जितने जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतने जल्दी ये OH माइनस के फॉर्म में बाहर, H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा और उतनी जल्दी ये अल्किल हाइड फॉर्मेशन करेगा। तो लार्जर द बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा उतना वीक, लेस इज़ द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। इसलिए रिएक्टिविटी वाइज HI जो है इट इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन हाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्किल हाइड। तो अल्किल हाइड इमीडिएटली रिएक्ट होगा, उसके बाद अल्किल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और लास्ट में रिएक्ट होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी आपकी अल्किल आयोडाइड की। तो ये था जनरल रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन हाइड की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस वे में इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाइड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हाइड प्लस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H2O फॉर्मेशन होगा, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड प्लस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये था अल्कोहल को कन्वर्जन करते हैं। लेकिन दिस रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड। ओके, सो HCl takes place in presence of zinc chloride। यहाँ पे when we carried out the same reaction we need to carry out the reaction in presence of catalyst like ZnCl2। HCl के साथ हम लोग यूज करते हैं Lucas reagent ZnCl2। okay, and in another cases for example in HBr HI there is no need of catalyst because bond length increase हो रहा है, तो bond हीटिंग कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प करता है, तो कैटेलिस्ट की ज़रूरत वहाँ पे मोस्टली नहीं होती है। ओके, तो दूसरा एग्जांपल हम लोग और एक ले लेते हैं। सेम वे अल्कोहल की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव, टर्शरी अल्कोहल सेकेंडरी और प्राइमरी, दैट इज दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल इस वे से रिएक्ट होंगे और हाइड्रोजन हाइड इस डायरेक्शन में उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो टर्शरी butyl alcohol when react with hydrogen iodide, loss of water molecule, it gives formation of tertiary butyl iodide plus water molecule। again यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। बढ़ते आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। सो नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। The alcohol, that is primary alcohol on oxidation by using different oxidizing reagent, first it get converted into aldehyde। तो oxidation का rule simple है कि primary alcohol on oxidation gives formation of aldehyde and aldehyde on further oxidation gives carboxylic acid, it gives carboxylic acid। same way primary alcohol जो है, primary alcohol अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है रिएक्शन को, एंड अल्डिहाइड ऑन अगेन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम वे सेकेंडरी अल्कोहल
when secondary alcohol on oxidation get converted into corresponding ketone, r dash ketone, but ketone could not be further oxidized because in oxidation of aldehyde it involved breaking of carbon hydrogen bond, and in ketone it involved the breaking of carbon carbon bond. So breaking of carbon hydrogen bond is much more easier, इसलिए aldehyde easily ऑक्सीडाइज होते थे कार्बोक्सिलिक एसिड में, but breaking of carbon carbon bond require more energy, hence ketones are could not be oxidized or immediately do not oxidize by normal oxidizing reagent. So suppose उनको ऑक्सीडाइज करना है तो you need to carry out the reaction with more stronger oxidizing reagent, more stronger oxidizing reagent like nitric acid, phosphorus pentoxide, chromium trioxide, अलग अलग reagent आपको यूज़ करने पड़ेंगे तभी उनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है. तो देखते हैं रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde, oxidation of alcohol and primary and secondary alcohol undergoes dehydrogenation reaction and gives formation of carbonyl compound, that is aldehyde and ketone. Okay, so primary alcohol on oxidation by using chromium trioxide, we cannot control the reaction up to the aldehyde state. It further aldehyde again further oxidized to corresponding carboxylic acid. सपोज आपको रिएक्शन aldehyde स्टेट पे रिस्ट्रिक्ट करना है तो रिएक्शन आपको कैरिड आउट करना पड़ेगा आइदर पीसीसी pyridine क्लोरोक्रोमेट या फिर pyridinium क्लोरोक्रोमेट और pyridium डाइक्लोरोक्रोमेट, ये जो रिएजेंट है इनके साथ रिएक्शन कैरिड आउट करना पड़ेगा, तभी प्राइमरी अल्कोहल आपका एग्जैक्टली aldehyde स्टेप पे रुकता है. ओके, और रिएक्शन ऑटोमेटिकली आपके aldehyde स्टेट पे रुकेगा और आपको अल्डिहाइड मिलता है. तो देखते हैं वन बाय वन रिएक्शन. ये जनरल इन्फॉर्मेशन बताया कि प्राइमरी अल्कोहल aldehyde फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, secondary alcohol oxidized to ketone could not be further oxidized because of involving breaking of carbon carbon bond. Oxidation of primary alcohol, तो primary alcohol RCH2OH when oxidized by using stronger oxidizing reagent K2Cr2 or Cr2O3, the aldehyde the alcohol get converted into aldehyde by dehydrogenation. एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस होता है, तो -H2 डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है. तो अल्कोहल गेट कन्वर्ट इनटू aldehyde, but this aldehyde again oxidized in presence of chromium trioxide get converted into carboxylic acid, ऐसे जनरेट होता है. तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एग्जाम्पल अल्कोहल प्राइमरी. ओके, when methanol react with strongest oxidizing reagent like chromium trioxide undergoes dehydrogenation reaction, यहाँ से एक और यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस होगा, तो इथाइल अल्कोहल गेट कन्वर्ट इनटू इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड. मीथेन और इथेन का ई एल से रिप्लेस होता है, तो ये हो जाएगा आपका इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड. और रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं क्योंकि रिएक्शन रीजेंट जो यूज़ किया है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है, तो फिर से रिएक्शन ऑक्सीडाइज होके क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ हीटिंग करेंगे. यहाँ पे हाइड्रोजन ही लॉस होता है सर. इट गेट कन्वर्ट इनटू CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड या फिर मीथेन इथेन का ई रिप्लेस होगा OH एसिड से, तो ये हो जाएगा आपका इथेनॉइक एसिड. सो रिएक्शन को अल्डेहाइड स्टेप पे कंट्रोल करना इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही जाता है. इसलिए ये जो रिएक्शन है हम लोग रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लाइक PCC के साथ कैरिड आउट करेंगे तो रिएक्शन पर्टिकुलरली अल्डेहाइड स्टेप पे रुक जाता है. उसके एग्जांपल देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दैट इज PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट. रिएक्शन दिया कि प्राइमरी अल्कोहल
when oxidized by using chromium trioxide, primary alcohol get oxidized, sorry, by using PCC, pyridium chlorochromate, it get converted into RC डबल बॉन्ड OH। अल्डेट स्टेट पे वो रुक जाता है, क्योंकि ये जो फर्दर माइल्ड रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, वो इमीडिएटली सॉल्यूशन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और लेस अवेलेबल होता है टुवर्ड दिस अल्डिहाइड। दूसरे ऐसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि CH3CH2OH गेट ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग PCC, रेडियम क्लोरोक्रोमेट इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल गेट कन्वर्ट इनटू CH3C डबल बॉन्ड OH। अगेन किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, मीथेन और इथेन, इथेनॉल, ओके, इसमें कन्वर्ट हो गया। सो ये था रिएक्शन बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रीजन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रीजन अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजन रिएक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है अप टू द अल्डिहाइड स्टेज। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल वो हम लोग देखते हैं। The secondary alcohol on oxidation gives ketone. General reaction R CH R dash OH when oxidized। अभी यहाँ पे either we can use PCC, कौन सा भी reagent यूज़ करो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, किसी भी reagent में यूज़ करो तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन हम लोग कैरिड आउट करेंगे तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन कन्वर्जन होता है, ओके। तो एग्जांपल देखते हैं कि CH3CH, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इजी हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड और 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेन, तो ये प्रोप टू ऑल या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो इसका कन्वर्जन कीटोन में जाएगा। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH3 डबल बॉन्ड O। अगेन इट अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन एक यहाँ से और यहाँ से, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। 2 पोजीशन पे ONE है, कीटोनिक ग्रुप है इसलिए 2ONE, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कॉमन नेम एसीटोन। सो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ व्हेन प्रोपेन टू ऑल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल गेन ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग एसीटोन। ये था रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन आप किसी भी रीजन के साथ करो, आइदर KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, इनके साथ रिएक्शन कैरिड आउट करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बट सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेप दिखाता है अप टू द कीटोन। सो आगे देखते हैं रिएक्शन बाय यूजिंग अल्टरनेट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अल्टरनेट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वो वाला, it is another method of oxidation of alcohol, heating with copper। alternative method है oxidation का alcohol का कि when vapors of different alcohol, primary secondary alcohol, when pass over heated copper, so primary alcohol on the vapors of primary alcohol when pass over heated copper, the primary alcohol get converted into aldehyde जैसे normally होता है। same way secondary alcohol on oxidation or vapors of alcohol when pass over heated copper, it gives formation of ketone। same way tertiary alcohol on heating with vapor of alcohol pass over copper, it get dehydration, and by loss of water molecule it gives formation of alkene, it gives formation of alkene। वो रिएक्शन देखते हैं तो मैं एग्जांपल के साथ ही जाता हूँ। CH3CH2OH when methyl alcohol, ethyl alcohol heated with copper in presence of 573 vapors of ethyl alcohol pass over heated copper, oxidation होगा and thus ethyl alcohol get converted into aldehyde CH3
C double bond OH, that is acetaldehyde. Okay. सेम वे ये था प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन देखेंगे. सेकेंडरी अल्कोहल, सो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं. CH3CH, CH3OH, 1 2 3. Okay, isopropyl alcohol. When vapors of isopropyl alcohol pass over heated copper at again temperature 573 Kelvin, undergoes oxidation, it gives formation of acetone, that is dimethyl ketone. Dimethyl ketone, it is also called as acetone. Okay, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो थे नॉर्मली वही यहाँ पे मिलता है, लेकिन द मेजर चेंजेस जो होता है इस रिएक्शन में, दैट इज टर्शरी अल्कोहल के साथ. कि टर्शरी अल्कोहल, दैट इज CH3OH, when the vapors of tertiary butyl alcohol pass over copper at 573 Kelvin, undergoes oxidation. तो यहाँ पे होता है कि ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन, टोटल 9 हाइड्रोजन जो है इस बीटा कार्बन एटम पे अटैच हुए, वो उसमें से एक हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, कहीं से भी कोई भी हाइड्रोजन निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता हूँ H, ये लोन पैरा इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन की वो यहाँ पे डोनेट होती है. यहाँ पे डोनेट होने के बाद ये कम्प्लीटली OH माइनस के फॉर्म में, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड ये है, सबसे वीक बॉन्ड ये रहेगा, तो ये OH माइनस और ये H प्लस, तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वो निकल जाता है और डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड के बीच. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3 OH और H प्लस H2. तो ये स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 1 2 3. अल्कीन जनरेट कर लेता है. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, लेकिन अल्कीन कौन सा, मीथेन 2 मिथाइल प्रॉप 1 ENE, 2 मिथाइल प्रॉप 1 ENE. ओके, तो ये थे डिफरेंट मेथड कि प्राइमरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज टू कीटोन, बट टर्शियरी अल्कोहल